हेलो एवरीवन। हाँ जी, क्या हाल चाल। सब ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन सेशन को। और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, इस टॉपिक को हम आज रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर का प्लस चैप्टर नंबर 11, इन दोनों का आपका टेस्ट है कमिंग संडे, डे आफ्टर टुमारो। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक इसका है हमारा, दैट इज, एक सेकेंड, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग. How we can define the word audit? The term audit, it may be defined as independent examination of financial information of any entity, whether that entity is profit oriented or a not non-government organization, NGO or NPO, irrespective of its size, small size, medium size, large size or legal form, corporate entity, non-corporate entity, individual, partnership firm, HUF, when the examination is conducted so as to express an opinion thereon. So audit is independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when the examination is conducted so as to express an opinion thereon. Independence, what it means? इंडिपेंडेंस से हमारा मतलब है एक पर्सन की जजमेंट शुड नॉट बी subordinate to the directions or the wishes of the person who might have engaged him. Independence implies that judgment of a person is not subordinate to wishes or direction of another person who might have engaged him or appointed him. Independence increase auditor's ability to act objectively. तो सबसे पहले तो जो चीज आपको लर्न करनी है वो है ऑडिट की डेफिनेशन. Independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or form, when the examination is conducted so as to express an opinion on the financial statement. इंडिपेंडेंस से हमारा क्या मतलब है? जजमेंट ऑफ द पर्सन शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम, एंड इंडिपेंडेंस इंक्रीजेस ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली. नाउ इसके बाद ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो 3 to 4 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जा सकता है. व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी एंश्योर्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीड एनीवन. तो इसमें आप एनी 4 पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को लर्न करने की जरूरत नहीं है, एनी 4 पॉइंट्स भी चलेंगे, क्योंकि 4 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन ना मई 24 के एग्जाम में आया ना सितंबर 24 के एग्जाम में आया है. फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो अकाउंट्स हैं दैट हैव बीन ड्रॉन with reference to the entries in the books of account. That means ledger posting appropriate है. Number 2, entries in books of account are supported by sufficient and appropriate evidences. इसका मतलब
जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जेन्युइन है, वैलिड है, ऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन है, सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्स. None of the entries in the books of account has been omitted in the process of compilation. Error of omission exist नहीं करता. हम completeness की बात कर रहे हैं. Information contained in the record is clear and unambiguous without any ambiguity. Appropriate recording की गई है. Amount shown in the financial statements, they are properly classified, described, and disclosures are made in conformity with the applicable accounting standards. Financial statement reflects true and fair view of financial results and financial position. So, 6 पॉइंट है, एनी 4 पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं. एक पॉइंट ये जरूर याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अमाउंट शो किए गए हैं, they are properly classified, described, and the disclosures are made in conformity with the accounting standard. Information given in the financial statement is clear and unambiguous. तो ये जो लास्ट के 3 पॉइंट हैं, ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो गए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, प्रॉपरली क्लासिफाइड है, डिस्क्राइब्ड है, डिस्क्लोजर एज पर एएस है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाई हुई है. और जो पहले 3 पॉइंट हैं वो हैं बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड. Accounts have been drawn up with reference to entries in books of account. Entries in books of account are supported by appropriate and sufficient evidences. None of the entries in the books of account has been omitted. तो अकाउंट्स ड्रॉ किए गए हैं, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट. एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट आर सपोर्टेड बाय appropriate evidences. None of the entries in books of account are been omitted. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग एज सच इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. हाँ, क्या हम SAAF कह सकते हैं? एविडेंस के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस. उसके लिए SAE वर्ड यूज किया जा सकता है. इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग रीडिंग पर्पस के लिए है, इस पे ज्यादा लर्निंग के लिए टाइम लगाने की जरूरत नहीं है. ऑडिटिंग क्या है? इट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर. हाउ इट इज कनेक्टेड विद द अकाउंटिंग. सिंस ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंसर्न्ड विद द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हेंस sound knowledge of accounting principle is a fundamental requirement for the auditor. How auditing is linked with the law? Good knowledge of business and taxation law help the auditor to understand the financial statement in a better manner with applicable laws. How auditing is linked with the behavioral science? During the course of audit, auditor has to connect with the lot of persons for seeking the information, conduct the inquiry. वो थर्ड पार्टी हैं, बैंकर हैं, एम्प्लॉइज हैं, मैनेजरियल पर्सन्स हैं. दिस कैन बी डन ओनली व्हेन द ऑडिटर हैज द नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर. ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स. ऑडिट में 100% एग्जामिनेशन नहीं होती, सैंपल बेस्ड चेकिंग होती है, एंड सैंपल सिलेक्शन के लिए स्टैटिस्टिकल साइंस का यूज किया जाता है. Auditors use statistical methods to draw the sample in scientific manner. It is not possible for the auditor to check each and every transaction. हर ट्रांसेक्शन को ऑडिटर चेक नहीं कर सकता. How auditing is linked with the economics? To obtain an understanding about the economic environment in which the entity operates, auditor must be familiar with the concept of economics. Knowledge of the economics
helps the auditor to be familiar with the overall economic environment in which the specific business is operating. How auditing is linked with the financial management? Financial management deal करती है with the fund flow management, cash flow, cash management, inventory management, trade receivable management, investment management, working capital management, ratio analysis. So auditor is expected to have knowledge about these for applying some of the audit procedures and carry out the audit effectively. जैसे चैप्टर 5 में आप कुछ रेशोज की स्टडी भी करेंगे. हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर रेशो बेस्ड है सारा का सारा, SA 520. सो ऑडिटिंग लिंक रखती है विद द अकाउंट्स, विद द लॉ, विद द स्टैटिस्टिक्स, विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, विद द इकोनॉमिक्स. द नेक्स्ट वन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको लर्न करना है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट एज पर SA 200 का नाम भी याद रखना है. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग. Overall objective of the auditor is to obtain reasonable assurance whether the financial statements as a whole they are free from material misstatement, whether due to fraud or error, so as to enable the auditor to express an opinion whether financial statements are prepared in all material respect as per the requirements of applicable financial reporting framework, and to report on financial statement and communicate as required by the standards on auditing in accordance with the findings. Now, अब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस. तो रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस का डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरह से पता है. एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या है? कंप्लीट एश्योरेंस और एक गारंटी. लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस क्या है? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज अ कंप्लीट एश्योरेंस और अ गारंटी that financial statements are free from the material misstatements. However, reasonable assurance is not a complete guarantee. It is a high level of assurance but not absolute. Right? चलिए आगे बढ़ते हैं. स्कोप ऑफ ऑडिट. ऑडिट के स्कोप में क्या क्या चीजें कवर होती हैं इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं. एक एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ ऑडिट और दूसरा एलिमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ ऑडिट. अब इसके ऊपर ही सितंबर 24 में क्वेश्चन आ चुका है. सितंबर 24 में क्या है क्वेश्चन, अभी बाद में डिस्कस कर लेता हूं. कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी. Audit of financial statement should be organized adequately so as to cover all aspects of the entity, but all aspects में ध्यान रखिएगा. all aspects का मतलब ये नहीं कि each and everything, all aspects that are related to financial statements. Number 2, reliability and sufficiency of the financial information. Auditor आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है to satisfied reasonably that जो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या सोर्स डेटा लाइक बिल, वाउचर, डॉक्यूमेंट्स में दिखाई गई है वो रिलायबल है और एक सफिशिएंट बेसिस प्रोवाइड करती है. यदि मैं डॉक्यूमेंट्स की और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करूं तो डॉक्यूमेंट से बुक्स में एंट्री होती है और बुक से एंट्री से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर मैं ओपिनियन देता हूं. तो जो डेटा है मेरा मींस डॉक्यूमेंट्स और जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो रेलिवेंट है, रिलायबल है और एक बेस प्रोवाइड करती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ऑडिटर को ये चीजें भी चेक करनी है
कि इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड द सोर्स डेटा आर रेलिवेंट एंड रिलायबल एंड प्रोवाइड अ वैलिड बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके लिए ऑडिटर को अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करना पड़ेगा सो एज टू चेक कि अकाउंटिंग सिस्टम जनरेट द इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट एंड रिलायबल। नंबर 3, डिस्क्लोजर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं वेदर दे आर इन कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। तो फॉर दैट पर्पस ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू स्टडी अगेन accounting system internal control. Auditor is required to examine whether the accounting policies that are being selected by the management क्या ये proper हैं, whether these policies are being applied consistently year after year. So auditor आपके स्कोप में ये 3 मेन बातें कवर होती हैं. You are required to adequately cover all aspects of the entity that are relevant to financial statement in your audit. नंबर 2, आपको चेक करना है इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड द सोर्स डेटा इज रेलिवेंट एंड रिलायबल सो एज टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपको चेक करना है कि जो डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिए गए हैं वेदर they are in compliance with the applicable statutory requirements, whether accounting policies they are appropriate and they consistently applied period to period. Now अब हमारी ऑडिट में क्या चीजें कवर नहीं होती. ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज जो उसकी कंपिटेंसी के बाहर हैं, which fall outside his competency, outside his domain. जैसे ऑडिटर इज नॉट एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट. मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट की तरह से काम नहीं कर रहा. आई एम जस्ट अ सिंपल ऑडिटर हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. तो फोरेंसिक एक्सपर्ट की ना मेरे पास नॉलेज है, ना मैं उसे अप्लाई कर रहा हूं, ना मेरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है. So genuineness of the document cannot be authenticated by him as he is not an expert in that field. इसी से रिलेटेड टॉपिक है ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का. ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इन एलिग्ड रॉन्ग डूइंग. जो चीजें गलत हो रही हैं उसकी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती ऑडिट. ऑडिटर डज नॉट हैव any specific legal power of search. इन्वेस्टिगेशन चल रही है जैसे सीबीआई कर रही है, वो कहीं पर भी सर्च कर सकती है, वो किसी भी गवाह की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को, असेट्स को सीज कर सकती है विद इन इट्स पावर. लेकिन ऑडिटर के पास तो ये पावर्स नहीं होती. ना उसके पास सर्च की पावर है, ना उसके पास स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने की पावर है. And such powers are required to carry out an official investigation. So, what is investigation? Investigation is the critical examination of the accounts with a special purpose. और ध्यान से देखिएगा इस लाइन को. ये लाइन एक क्वेश्चन बना सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए फ्रॉड इज सस्पेक्टेड and it is specifically called upon to check the account, क्या फ्रॉड एक्चुअल में हुआ है? It is not audit, rather it takes the shape of character of investigation. Objective of audit क्या है? To obtain reasonable assurance whether financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion. लेकिन इन्वेस्टिगेशन उसका स्कोप अलग है. वहां पर आप डिटेल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. यू हैव द पावर टू एंटर इनटू एनी प्रीमाइसिस. You have the power to record the statement of witnesses on oath. ऑडिट का स्कोप जनरल है, वाइड है, कवर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स. लेकिन
इन्वेस्टिगेशन का स्कोप नैरो है, एक पर्टिकुलर एरिया पर फोकस होता है, उस एरिया की इन डेप्थ पर फोकस होता है। तो ऑडिट का स्कोप जनरल है, ब्रॉड है, इन्वेस्टिगेशन का स्कोप स्पेसिफिक है एंड नैरो है। मैं अब आपको सितंबर 24 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन दिखा रहा हूं। सितंबर 24 के एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। PD and company chartered accountant were appointed as the statutory auditor of MR Limited for the financial year 23-24. MR Limited including the following clause in the appointment letter to the auditor. Appointment letter में क्या लाइन लिख रहे हैं? Auditor shall be responsible for detecting the fraud that may happen in the company during the फाइनेंशियल ईयर 23-24। क्या ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल किया जा सकता है फॉर डिटेक्टिंग द फ्रॉड दैट मे हैपन इन द कंपनी? बताओ जरा, क्या ऑडिटर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द फ्रॉड, हां या ना? डिटेक्शन। और आगे कहता है ऑडिटर ऑब्जेक्टेड टू इंक्लूजन ऑफ सच ए क्लॉज इन द अपॉइंटमेंट लेटर डिस्कस इन द लाइट ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट। हमारी ऑडिट के स्कोप में कवरेज है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू एग्जामिन द रिलायबिलिटी एंड रेलिवेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, to ensure appropriate disclosures are being given in the financial statement. Audit is not an investigation of alleged wrongdoings. Auditor cannot be held responsible for fraud that may occur in the entity. So, auditor is not responsible for the detecting the fraud that may happen in the company. तो ऑडिटर की ऑब्जेक्शन फॉर इंक्लूजन ऑफ सच ए क्लॉज इन द अपॉइंटमेंट लेटर इज करेक्ट। सो ये सितंबर 24 का जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ है उसके अंदर 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लर्न एनी 4 पॉइंट्स, कोई भी 4 पॉइंट आप याद कर लें इसमें से। नंबर 1, ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड गिव कॉन्फिडेंस टू द यूजर दैट, कि जिस इंफॉर्मेशन पर वो रिलाई करने जा रहे हैं वो इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव है एंड इज आउटकम ऑफ एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन, या it is the outcome of exercise that are being carried out by following the auditing standards जिन्हें वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ऑडिट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड गिव कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स। सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ कंपनीज shareholders may or may not be involved in daily affairs of the company. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मैनेजमेंट बना रही है, दैट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि शेयर होल्डर ओनर है जिन्होंने पैसा लगा रखा है, कैपिटल लगा रखी है। दे वांट ए इंडिपेंडेंट असेसमेंट कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाई जा रही है वो रिलायबल है, रेलिवेंट है, क्वालिटेटिव है। तो यदि आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की थोरो एग्जामिनेशन करवा लेंगे एक इंडिपेंडेंट पर्सन से, तो ये ऑडिट शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेगी। हेंस ऑडिट सेफ गार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर। ऑडिट पुट moral check on the employees from committing the fraud due to the fear
कि हमने यदि कोई फ्रॉड किया दैट मे बी डिस्कवर्ड इन द ऑडिट, और ऑडिटर ने डिस्कवर किया देन हमारे अगेंस्ट पनिटिव एक्शन लिया जा सकता है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज को हेल्प करती है फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटीज। Audited financial statements are being relied by the lender, bankers for making their credit decisions. Audit may also detect fraud or error or both. अब ध्यान दीजिएगा यहां पर may, मेरे सामने आ गया तो मैं करूंगा, मेरी ड्यूटी का पार्ट नहीं है ये। मेरे सामने कोई फ्रॉड आ गया देन डेफिनेटली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 240 आई विल परफॉर्म द प्रोसीजर्स। Audit reviews existence and operation of various controls operating in any entity and hence it points out जो deficiencies एक ऑर्गेनाइजेशन में विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करती होंगी। सो ऑडिट के बेनिफिट्स आपको क्या कीवर्ड्स याद रखने हैं? एक यूजर्स के पॉइंट से, शेयर होल्डर्स के पॉइंट से, एम्प्लॉइज के पॉइंट से, गवर्नमेंट के पॉइंट से, लेंडर बैंकर्स के पॉइंट से। यूजर्स के पॉइंट से बात करता हूं तो यूजर्स को हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाता है। एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एम्प्लॉइज पर एक मोरल चेक लगाया जा रहा है। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज का एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है। लेंडर एंड बैंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ऑडिटेड अकाउंट हेल्प देम इन टेकिंग द क्रेडिट डिसीजंस। सो यूजर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एंड लास्ट वाला पॉइंट आ गया आपका दैट इज बैंकर्स, लेंडर्स। और लास्ट के दो पॉइंट, ऑडिटेड अकाउंट्स, ऑडिट में हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, एंड क्योंकि ऑडिट इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज को भी पॉइंट आउट करती है, इंटरनल कंट्रोल की असेसमेंट करती है, सो इंटरनल कंट्रोल्स में बी इंप्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिट। हाँ जी, बताइए कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। अभी एक इस टॉपिक में 2-3 पॉइंट और हैं, ये भी डिस्कस कर लेता हूं, फिर कोई डाउट होंगे तो वो इकट्ठे ले लूंगा। मैंडेटरी ऑडिट वर्सेस वॉलंटरी ऑडिट। ऑडिट इज नॉट ऑलवेज लीगली मैंडेटरी। Audit is not always legally mandatory. Entities like companies, they are compulsorily required to get the accounts audited under law. However, non-corporates means other than company, उनके अकाउंट्स की ऑडिट टैक्सेशन लॉ में हो सकती है यदि उनका रेवेन्यू एक थ्रेशहोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन, याद है 44AB। एंटिटीज लाइक स्कूल्स may be required to get the accounts audited for the purpose of obtaining grant or assistance from the government. Many entities get their accounts audited voluntarily. क्यों? Because of these benefits. Audited accounts helps in a number of ways. यूजर्स को क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। ऑडिट में हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। ऑडिटेड में डिटरमिन deficiencies in internal control. Audit put a moral check on the employees to commit the frauds. Who appoints auditor? कंपनीज के केस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कंपनी के मेंबर्स करते हैं इन द एनुअल जनरल मीटिंग। इन जनरल की बात कर रहे हैं। और वैसे कंपनीज में कुछ सिचुएशंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ये अपॉइंटमेंट करते हैं।
गवर्नमेंट कंपनीज के केस में ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पार्टनरशिप फर्म के केस में ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द पार्टनर्स ऑफ द फर्म टू whom ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड। ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द पर्सन जिसने ये अपॉइंटमेंट की है। कंपनीज के केस में ऑडिट रिपोर्ट विल बी एड्रेस्ड टू द शेयर होल्डर एंड पार्टनरशिप फर्म के केस में रिपोर्ट विल बी एड्रेस्ड टू द पार्टनर्स। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, दैट इज मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर कवर की गई है। हां जी, अब बताइए कोई डाउट इस टॉपिक पर है तो, मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के ऊपर। एनी डाउट? नहीं, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें से लर्निंग वाले टॉपिक कौन से हैं? पॉइंट्स टू बी एंश्योर्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीड एनीवन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। ये वाले जो टॉपिक हैं रीडिंग पर्पस के लिए, एज सच इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं है, बट क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए कवर तो हर एक चीज को करना है। कंपनीज में बीओडी भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जो कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर है, कंपनी का फर्स्ट 30 डेज में तो बीओडी ही करते हैं। कैजुअल वैकेंसी है, वहां पर भी बीओडी ही करता है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, जो वैकेंसी फिल की जाती है। नेक्स्ट, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। एज पर एसए 200, जिसका नाम क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। क्या ऑडिटर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या ऑडिटर ऑडिट रिस्क को 0 पर ला सकता है? नो, auditor is not expected to and he cannot reduce audit risk to 0, therefore absolute assurance तो लिया ही नहीं जा सकता। So auditor cannot obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud or error। और ऐसा क्यों है? Because of inherent limitations of audit। अब ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या क्या है? नंबर 1, ये टॉपिक भी एज सच इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक सो शायद ये May 24 के एग्जाम में आया हुआ है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है और मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त बहुत सारी जजमेंट्स लेती है, जैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाती है। तो वो जजमेंट्स में इन्वॉल्व सब्जेक्टिविटी, बायसनेस हो सकती है। सो दीज जजमेंट्स में इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजंस ऑन अनसर्टेनिटी, देयरफॉर auditor may not be able to obtain absolute assurance that financial statements as a whole are free from material misstatement। तो ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो ले ही नहीं सकता है। वन ऑफ द प्रीमाइसेस for conducting an audit is that management acknowledge its responsibility for preparation of financial statement in accordance with the financial reporting framework,
मैनेजमेंट आपकी जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना, बट ये जो इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने डिजाइन करे, दे मे नॉट हैव बीन ऑपरेटेड। आपने डिजाइन तो कर दिए बट उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं कराया, इंप्लीमेंटेशन कराया बट वो इफेक्टिव नहीं है इंटरनल कंट्रोल्स। सो such control may not have operated to produce the reliable financial information due to their own limitation। तो जब इंटरनल कंट्रोल वो ही इनहेरेंट लिमिटेशन से सफर करता है और इसी इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रेलिवेंसी, रिलायबिलिटी डिपेंड करती है, तो जब इंटरनल कंट्रोल के अंदर इनहेरेंट लिमिटेशन है तो ऑडिट में तो इनहेरेंट लिमिटेशंस आनी ही आनी है। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स जो मैं परफॉर्म करता हूं एज ए ऑडिटर, उनकी अपनी कुछ कमियां हैं। कमियां कैसे? देयर आर सम लिमिटेशंस जो मेरी स्कोप के ऊपर लगी हुई है। जैसे मैं सर्च नहीं कर सकता, हम इन्वेस्टिगेशन की एक्सटेंट तक नहीं जाते, हम इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स यूज नहीं करते, हम सिर्फ उतना काम करते हैं जितना हमारे से कहा गया है, हम रीजनेबल एश्योरेंस के लिए अपनी वर्किंग करते हैं, हम मैनेजमेंट से फोर्सफुली कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, वी कैन नॉट रिकॉर्ड द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस ऑन ओथ, फोर्सफुली एंटर नहीं कर सकते प्रीमाइसिस में। देयर आर practical and legal limitations on the auditor's ability to obtain audit evidence. Auditor does not test all transaction and balances. वो सिर्फ सैंपल के बेसिस पर अपनी ओपिनियन फॉर्मुलेट करता है, ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। So audit, because it does not involve 100% checking, it is a practical limitation on auditor's ability to obtain audit evidences. Second one, legal limitation. आप मैनेजमेंट से फोर्सफुली इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। You do not have the power to search any premises, enter forcefully into any premises, record statements of witnesses on oath, asking the information from management forcefully. Management may not provide complete information as required by auditor. There is no way by which auditor can force the management to provide complete information. In case he is not provided with the required information, what he can do? वो सिर्फ अपनी रिपोर्ट में इस बात को लिख सकता है। He can only report that matter. So ये लीगल लिमिटेशन हो गई ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। तो पहला पॉइंट क्या आ गया? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा पॉइंट आ गया नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आगे बढ़ते हैं। ऑडिट इज नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी पढ़ा। ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन and hence auditor cannot obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. Timeliness of financial reporting and decrease in the relevance of information over the time. Information की relevancy over the time decrease होती चली जाती है और auditor cannot verify each and every matter at the time when the transaction occurs. So, auditor को information की reliability and cost of obtaining that information and timing of performing the procedures, उसमें एक appropriate balance बनाना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, अब मान लो आज एक ट्रांसैक्शन हो रही है, उस ट्रांसैक्शन की एग्जामिनेशन मैं आज नहीं कर सकता, 3 महीने बाद करूंगा। 3 महीने बाद इस इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करने के लिए 3 महीने तक इस इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व भी करना पड़ेगा। तो
कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग द रिकॉर्ड्स, वो भी अपने आप में एक मैटर होता है। कई बार क्या होता है कि आपने एक ट्रांजैक्शन की, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन मास्टर फाइल में अपडेट हो गई आईटी सिस्टम के अंदर, तो जो उसकी इनिशियल एंट्री थी वो सिस्टम से हट जाती है। जैसे आपके मोबाइल में ठीक कुछ दिन के बाद कॉल डेटा की जो रिकॉर्ड है वो हट जाता है, अपना एक स्टोरेज कैपेसिटी है। तो वही चीज है कि जो इंफॉर्मेशन की रेलिवेंसी है वो ओवर द टाइम पीरियड डिक्रीज होती चली जाती है, और आप ईच एंड एवरी ट्रांसेक्शन को एट द टाइम जब एक ट्रांसेक्शन जनरेट हुई थी तब चेक नहीं कर सकते। सो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ बैलेंस किसके बीच में, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन एंड रेलिवेंसी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। लास्ट, फ्यूचर इवेंट्स। एंटिटी के फ्यूचर इवेंट्स एंटिटी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं, और ये एडवर्स इवेंट बिजनेस को शट डाउन कर सकते हैं। बट मैं तो फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सो बिजनेस फ्यूचर में चलेगा नहीं चलेगा उसकी कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता। फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन may affect an entity adversely. Adverse events may seriously affect the ability of an entity to continue its business. Business may cease to exist in future due to change in market conditions, emergence of new business model product, due to onset of some adverse events. कुछ adverse events happen होना, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कोरोना। किसी ने क्या 2018 में 17 में एक्सपेक्ट किया था कि 2020 में कोरोना आएगा? सो इनहेरेंट लिमिटेशंस के कितने पॉइंट्स आ गए? 5। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, not in nature of investigation, timeliness of obtaining information and cost of obtaining information, and future events. So ये 5 पॉइंट हैं जो हमारे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के अंदर फॉल करते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, मई 24 में आया है, बट 25 में भी आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर इसका ये टॉपिक अपने आप में अलग से भी इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का, जिसमें ये स्टेटमेंट आ सकती है, देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। एक्सप्लेन करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी, कोई डाउट? ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंगेजमेंट क्या होती है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर से ये टॉपिक कराना, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी ये आपको टॉपिक कराया था, फिर चैप्टर के अंदर तो डिटेल में हमने इसे कवर किया ही था। एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग, और ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में it is a formal agreement between the auditor and the client where auditor agree to provide auditing services. It takes the shape of engagement letter, external audit engagement, internal audit engagement,
Internal audit engagement is being carried out by a person who is internal to the organization. मतलब internal auditor will carry out the work as per the scope defined by the management. But external audit engagement, इसका purpose है to enhance the degree of confidence of intended users of the financial statement, and such engagements are reasonable assurance engagement. अब ये रीजनेबल और एश्योरेंस एंगेजमेंट्स क्या है? एंगेजमेंट जहां पर प्रैक्टिशनर अपना कंक्लूजन एक्सप्रेस कर रहा है and the conclusion is designed so as to enhance the degree of confidence of the intended user other than the responsible party. रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिसने इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को तैयार किया है, दैट इज मैनेजमेंट. सो एश्योरेंस एंगेजमेंट इज एन एंगेजमेंट जहां पर प्रैक्टिशनर अपना एक कंक्लूजन एक्सप्रेस कर रहा है एंड द कंक्लूजन इज बीइंग डिजाइन्ड टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर other than responsible party about outcome of evaluation or measurement of a subject matter against the criteria. तो इसी डेफिनेशन से इसके एलिमेंट्स भी हैं. नंबर एक, इसमें तीन पार्टीज हैं, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर. इसका दूसरा एलिमेंट है सब्जेक्ट मैटर, दैट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. इसका तीसरा एलिमेंट है क्राइटेरिया, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसके अगेंस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन किया जाता है, जिसके बेस पर ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है. लेकिन ओपिनियन देने से पहले ऑडिटर को कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है और कंक्लूजन बेस्ड होता है किस पर? ऑडिट एविडेंसेस पर. और ऑडिट एविडेंसेस की नेचर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होनी जरूरी है. ये टॉपिक मेरे हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कमिंग एग्जाम के लिए. व्हाट इज एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट. तो ये डेफिनेशन याद रखनी है. एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? एन एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस ए कंक्लूजन that is designed to enhance degree of confidence of intended user other than responsible party about outcome of evaluation or measurement of subject matter against the criteria. Elements क्या क्या है? Number 1, three party relationship. Assurance engagement involves three parties. Practitioner, the person who provides the assurance. The term practitioner is broader than auditor. Auditor सिर्फ ऑडिट करता है, प्रैक्टिशनर रिव्यू कर सकता है, अदर एश्योरेंस कर सकता है, रिलेटेड सर्विसेज रेंडर कर सकता है. ऑडिट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, whereas जो प्रैक्टिशनर है may also provide the assurance not necessarily related to historical. That means वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एग्जामिनेशन करके उसके ऊपर भी एश्योरेंस रिपोर्ट दे सकता है. रिस्पॉन्सिबल पार्टी, द पार्टी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. इंटेंडेड यूजर, वो पर्सन जिनके लिए एश्योरेंस रिपोर्ट तैयार की जाती है. दिस पर्सन मे यूज द रिपोर्ट इन मेकिंग डिसीजन. सब्जेक्ट मैटर, वो इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर. और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट के अंदर वो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्राइटेरिया,
क्राइटेरिया, दे आर द सुटेबल बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट किया जाता है, एंड दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. दे मे बी लॉ, दे मे बी रूल, they may be regulation, they may be guidance, there may be frameworks. Benchmarks used to evaluate the subject matter like standards, accounting standard, Ind AS, guidance, law, rule, regulations. Fourth element, sufficient appropriate evidence. Practitioner performs the assurance engagement so as to obtain sufficient appropriate evidence. इन्हीं एविडेंसेस के बेस पर कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं और ये कॉन्क्लूजन ओपिनियन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट एविडेंसेस शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट इन नेचर. सफिशिएंसी relates to quantity of evidence, whereas appropriateness relates to क्वालिटी ऑफ एविडेंस. पांचवा एलिमेंट, रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट, दैट इज आउटकम ऑफ द एंगेजमेंट विच कंटेन्स द कंक्लूजन दैट कन्वे एश्योरेंस अबाउट द सब्जेक्ट मैटर. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन माय ओपिनियन. कमिंग एग्जाम में ये पूछा जा सकता है 4 मार्क्स तक का. व्हाट इज एश्योरेंस एंगेजमेंट and explain three-party relationship in case of assurance engagement. So आपको फिर इतना आंसर देना होगा. या क्वेश्चन आ सकता है, what is assurance engagement? What are the elements of assurance engagement? Explain any 3. 5 एलिमेंट्स हैं. three-party relationship, subject matter, thereafter suitable criteria, sufficient appropriate evidence and एक रिपोर्ट. Now, types of assurance engagement 2 हैं, एक रीजनेबल और दूसरा लिमिटेड. रीजनेबल हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, लिमिटेड लोअर देन रीजनेबल. रीजनेबल एश्योरेंस के लिए ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट, इलेबोरेट, इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डिटेल्ड, इलेबोरेट, एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स. बट लिमिटेड एश्योरेंस के केस में ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म लिमिटेड प्रोसीजर जो 2 हैं, एक इंक्वायरी और दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसकी डिटेल SRE में पढ़ोगे फाइनल में जाकर. रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में लेवल ऑफ एश्योरेंस इज रीजनेबल, लेकिन लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में लिमिटेड कंक्लूजन्स. एग्जांपल ऑडिट. लिमिटेड एश्योरेंस के एग्जांपल रिव्यू, एंगेजमेंट एंड एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के एग्जांपल्स ऑडिट, रिव्यू, examination of PFI and report on controls prevailing at a organization. Audit, reasonable assurance engagement, जहां पर ऑडिटर डिटेल्ड प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है so as to collect sufficient appropriate audit evidences. रिव्यू, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं सो एज टू ड्रॉ लिमिटेड कंक्लूजन. एग्जामिनेशन ऑफ PFI, प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन, यहां पर ऑडिटर जिन अजम्पशंस पर इन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को तैयार किया गया है वो अजम्पशंस को एग्जामिन करता है. प्रोजेक्शन का बेस क्या है, सोर्स डेटा जहां से ये इंफॉर्मेशन तैयार की गई है. तो ऑडिटर अपनी एग्जामिनेशन में रीजनेबिलिटी ऑफ अजम्पशंस फॉर्मिंग बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन, उसके ऊपर एश्योरेंस देता है. इसके ऊपर हमारा एक SAE है 34
3400 सीए फाइनल में पढ़ेंगे। रिपोर्ट्स ऑन कंट्रोल्स ऑपरेटिंग एट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट प्रोवाइड्स द एश्योरेंस रिगार्डिंग डिजाइन, ऑपरेशन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, और इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड है SAE 3402। ये काफी डिटेल में मैंने आपके साथ रेगुलर क्लास में डिस्कस किया हुआ है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन का पर्पस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इतना सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। और 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम्पल्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके आंसर में रिलेटेड सर्विसेज मत लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि रिलेटेड सर्विसेज आपको पता है वो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट की कैटेगरी में आता है। ऑडिट एंड रिव्यू में क्या डिफरेंस है? दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं, विच आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, जबकि रिव्यू लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। रिव्यू के प्रोसीजर्स लिमिटेड हैं एंड लिमिटेड कंक्लूजन्स ड्रॉ किया जाता है बेस्ड अपॉन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस, लेकिन ऑडिट के प्रोसीजर्स डिटेल्ड हैं और रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट, PFI जो प्रोजेक्शंस है, फोरकास्ट है, जिसकी एग्जामिनेशन SAE 3400 में कवर होती है। ऑडिटर इसमें एग्जामिन करता है कि जो अजम्पशंस मैनेजमेंट ने यूज की है इस PFI को बनाने के लिए, क्या वो अजम्पशंस सही है। सोर्स डेटा का डिस्क्लोजर दिया गया है, बेसिस ऑफ फोरकास्ट का डिस्क्लोजर दिया गया है कि किस बेसिस पर इस फोरकास्ट को तैयार किया गया है, और ऑडिटर अपनी एक स्टेटमेंट देता है दैट नो वाउचिंग डन फॉर डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। इस फोरकास्ट की एक्यूरेसी को डिटरमिन करने के लिए कोई वाउचिंग नहीं की गई है। क्यों? फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है, वाउचर थोड़ी अवेलेबल होंगे। Voucher will be available only for historical data, not for the prospective data. So what is PFI? Financial information which is based on the assumptions about the event that may occur in future and possible actions by an entity. It can be in the form of a forecast or a projection और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जब ऑडिटर इसके ऊपर एश्योरेंस रिपोर्ट्स देता है, देन एश्योरेंस रिपोर्ट देने से पहले ही इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस रिगार्डिंग जो अजम्पशंस यूज की गई हैं बाय द मैनेजमेंट, दीज आर नॉट अनरीजनेबल। जो PFI बनाई गई है वो इन्हीं अजम्पशंस के बेसिस पर बनाई गई है जिसकी रीजनेबलनेस मैंने चेक की है। एंड PFI इज प्रॉपरली प्रेजेंटेड, और जो इंफॉर्मेशन, जो अजम्पशंस हैं जिनके बेसिस पर ये PFI बनाई गई है, उसका एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दिया गया है। एस PFI किससे रिलेटेड है? फ्यूचर इवेंट से। एविडेंसेस आर अवेलेबल टू सपोर्ट द अजम्पशंस ऑन विच PFI इज बेस्ड, और ये एविडेंसेस भी फ्यूचर ओरिएंटेड होंगे। सो ऑडिटर विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर रिजल्ट शोन इन द PFI विल बी अचीव्ड और नॉट। अच्छा, इसमें आप ऑडिटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिशनर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंगेजमेंट ऑडिटर कैन आल्सो परफॉर्म दिस एंगेजमेंट। ऑडिटर भी इस एंगेजमेंट को परफॉर्म कर सकता है। Therefore, practitioner, or you can say auditor, provides the report assuring that
nothing has came to his attention to suggest that these assumptions do not provide a reasonable basis for the projection. तो ऐसे एंगेजमेंट को, ऐसी एश्योरेंस को आप मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस का नाम देंगे। तो जो पीएफआई की एग्जामिनेशन है उसके अंदर आप दो तरह से अपनी वर्डिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, अपना जो आपने वर्क किया है उसकी वर्डिंग्स। एक उसमें अजम्पशंस की रीजनेबलनेस होती है और दूसरा इस अजम्पशंस के बेसिस पर पीएफआई की कैलकुलेशंस होती हैं। जो अजम्पशंस की रीजनेबलनेस है वहां पर प्रैक्टिशनर या ऑडिटर मॉडरेट लेवल तक काम करता है, लेकिन इन अजम्पशंस के बेस पर जो कैलकुलेशंस की गई है वहां पर ऑडिटर रीजनेबल लेवल पर चला जाता है। कैलकुलेशंस को चेक करना तो ऑडिटर के लिए कन्वीनियंट है और वो कैलकुलेशंस बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं, सेल्स इंक्रीज्ड बाय 5% एवरी ईयर। 5% का ग्रोथ रेट सही है या नहीं, यहां सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। बट 105 में फिर 5% ऐड कर दें, यदि हम 110.25 प्लस 5% 115.76 प्लस 5% 121.55, ये तो चेक करना ऑडिटर के लिए बाएं हाथ का खेल है। यहां ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ले सकता है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी। जो SAE 3400 है उसमें दोनों चीजें चलती हैं, रीजनेबल भी चलता है और लिमिटेड भी चलता है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस की गई है अबाउट द इवेंट्स, कंडीशंस and circumstances that already occurred in the past. Prospective information, financial information which is based on the assumption about the occurrence of the future events and possible actions by the entity. तो जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है वो पास्ट इवेंट से रिलेटेड है, जबकि पीएफआई फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड है। तो इसमें जो ये आपका टॉपिक था एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी टॉपिक्स आप रीडिंग करके भी छोड़ देंगे चलेगा। पीएफआई के ऊपर क्वेश्चन मेरे हिसाब से चांसेस काफी कम है क्योंकि फाइनल के अंदर उसकी डिटेल कवर है। तो इंटरमीडिएट लेवल पर एश्योरेंस एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट, उसके एलिमेंट्स वो कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। थ्योरेटिकल टॉपिक है, पूछा जा सकता है ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना है। ऑडिटर तुम्हें फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी और अदर इंस्टीट्यूशन पर रिपोर्टिंग करनी है। अब क्योंकि बात फाइनेंस की आ गई और फाइनेंस के साथ तो हर एक पर्सन की एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई होती हैं। पैसा तो बड़े बड़े पर्संस का, बड़े बड़े इंसानों का ईमान गिरा देता है, ऐसा कहा है, सुना हुआ है ऐसा। तो फाइनेंशियल मैटर इनहेरेंटली आर सेट विद द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन फॉलिबिलिटी, और यहां एरर एंड फ्रॉड्स के चांसेस ज्यादा है। तो ऑडिटर से एक्सपेक्ट किया जाता है टैक्टफुल अप्रोच, बी कॉशियस, बी फर्म, हैविंग ए गुड टेम्परामेंट, must exercise integrity, discretion, industry knowledge, judgment, patience, clear-headedness, reliability. तो ऑडिटर से ये क्वालिटीज एक्सपेक्ट की जाती है। इन एडिशन
auditor must have highest degree of integrity that is backed by the independence. Auditor must have basic human qualities apart from technical one. Exhausting knowledge of accounting in all branches is sine qua non, means non compromise. उसके साथ कोई समझौता नहीं है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है. तो एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इन ऑल इट्स ब्रांचेस इज साइन क्यू नॉन इन प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग. हेंस ऑडिटर मस्ट हैव थोरो नॉलेज ऑफ ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द टेक्निक्स. सो दिस इज अबाउट क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर. अच्छा, अब एक टॉपिक बचा है हमारा, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड. इस टॉपिक को जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को कवर करेंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है. ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक. चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स. फर्स्ट टॉपिक, नीड फॉर द स्टैंडर्ड्स. हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं QCES, आपको ध्यान होगा दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स. एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज. SQC 1 to 99, SA 100 to 899, 2000 से 2699, 3000 से 3699 एंड 4000 से 4699. SQC में सिर्फ एक स्टैंडर्ड इशूड है एंड दैट इज SQC1 पेरेंट स्टैंडर्ड, जो अप्लाई होता है ऑल एंगेजमेंट्स पर, whether it is audit or it is review or other assurance or related services. Now, सबसे पहले बात कर लेते हैं नीड फॉर स्टैंडर्ड्स की. क्वेश्चन आ सकता है 3 to 4 मार्क्स के लिए, लर्न करना है. स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि आप ऑडिट जो परफॉर्म कर रहे हैं वो इन अकॉर्डेंस विद सम स्टैंडर्ड्स, सम बेंचमार्क, सम गाइडलाइंस परफॉर्म करें, जो बेंचमार्क्स ग्लोबली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है. सो स्टैंडर्ड्स इंश्योर दैट ऑडिट इज बीइंग कैरिड आउट अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क that are at par with the global practices. Standards improves the quality of financial reporting. और जब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के यूजर्स हैं दे कैन टेक द बेटर डिसीजंस, डिलीजेंट डिसीजंस. स्टैंडर्ड्स प्रमोट यूनिफॉर्मिटी. मैं भी इन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट करूंगा, आप भी इन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट करेंगे. XYZ कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो इन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट करेगा एंड हेंस ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बीइंग कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद दिस स्टैंडर्ड बाय ईच एंड एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हेंस इट प्रमोट्स यूनिफॉर्मिटी इन ऑडिट. It equip
professional accountant with the professional knowledge and the skills, and standard ensures audit quality. So 3 to 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. व्हाट इज द नीड फॉर हैविंग स्टैंडर्ड्स? स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि standards ensures that audit is being carried out in accordance with the benchmarks that are at par with the global practices. Standards promotes uniformity as audit of financial statement is being carried out in accordance with the standard. Standard improves quality of financial reporting, which helps the users to take diligent decisions. Standard ensures quality work, it improves audit quality, and standard equip the professional accountants या chartered accountant with the professional knowledge and the skill. Now, classification दो कैटेगरीज हैं, एसक्यूसी एंड ईएस. ईएस की 4 कैटेगरीज हैं, एसए, एसआरई, एसएई, एसआरएस. पहले बात कर लेते हैं एसक्यूसी की. इट एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइड्स द गाइडेंस रिगार्डिंग फर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल so as to conduct audit and a review of historical financial information and other assurance and related service engagement. So SQC1 आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है दैट फर्म आपको एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करना है फॉर ऑल टाइप ऑफ एंगेजमेंट. जब मैं ऑल टाइप कह रहा हूं तो इसमें ऑडिट एंड रिव्यू आ गया. ऑडिट एंड रिव्यू दोनों किसका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का. अदर एश्योरेंस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का. रिलेटेड सर्विसेज लाइक कंपाइलेशन. इस कैटेगरी में जो नंबर अलॉटेड है वो है 1 to 99. टिल डेट सिर्फ एक स्टैंडर्ड इशूड है SQC1 which requires the auditors or the practitioners to establish the system of quality control so that firm and firm के सारे personnel they comply with the professional standards and legal and regulatory requirement और जो reports वो issue करें that are appropriate. ये SQC1 का ऑब्जेक्टिव है जिसकी डिटेल आप चैप्टर 11 में करेंगे, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में. SQC1 applied for all services covered by the engagement standards. तो SQC1 बेसिक स्टैंडर्ड है, पेरेंट स्टैंडर्ड है, सारी एंगेजमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है, फर्म लेवल पर चलता है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जिसका ऑब्जेक्टिव कि फर्म एंड इट्स पर्सोनल कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड जो रिपोर्ट्स इशू की जाए दैट आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस. अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की. दूसरी कैटेगरी है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स की, जिसमें 4 स्टैंडर्ड्स आते हैं, ऑडिट का, रिव्यू का, अदर एश्योरेंस का एंड रिलेटेड सर्विसेज का. तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है. आ सकता है क्वेश्चन. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. दीज स्टैंडर्ड्स आर टू बी अप्लाइड in audit of historical financial information. Standards on review engagements that are to be applied in a review of historical financial information. Standards on assurance engagements that are to be applied
in the assurance engagement dealing with the subject matter other than historical financial information. और दो सब्जेक्ट मैटर हैं, कौन कौन से? एक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और दूसरे इंटरनल कंट्रोल। एक और है 3420 स्टैंडर्ड है उसका, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बस उसकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, फाइनल के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। फोर्थ, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज that are to be applied on engagements involving application of agreed upon procedure and other related services like compilation। और इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो पहले तीन स्टैंडर्ड हैं, ऑडिटिंग का, रिव्यू का एंड अदर एश्योरेंस का, ये किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। और ये जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के ऊपर कौन कौन से स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, तो आपको ये तीन आंसर देने हैं: ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड्स ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। अब इनकी क्लासिफिकेशन, ये नंबर जो इनको अलॉटेड है, स्टैंडर्ड्स की नंबर क्लासिफिकेशन सिर्फ रेफरेंस के लिए है, इसको लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना इस पे कोई एमसीक्यू बनेगा, ना इसके ऊपर ही कोई आपका डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक एक करके चारों एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को स्टडी करना है। एसक्यूसी हमने कर लिया, अब एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स की बारी आ गई। पहला एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स की कैटेगरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ये अप्लाई होते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। These standards establish high quality benchmarks and are followed by the auditor while carrying out the audit of historical financial information contained in the financial statements। Standards on auditing बहुत सारे मैटर्स पर इशूड है, जैसे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, SA 200 आज ही कवर किया। Audit documentation SA 230, planning and audit SA 300, identifying and assessing risk of material misstatement SA 315, audit sampling SA 530, audit evidence SA 500, forming an opinion and reporting on financial statement SA 700। ये जो पॉइंट है आपको फर्स्ट चैप्टर में लगेगा अरे इतने सारे पॉइंट कैसे याद होंगे, बट इन्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही सिलेबस पूरा होगा ये नाम सारे अपने आप याद हो जाने हैं। ये तो आपके सिलेबस के बड़े सारे स्टैंडर्ड्स के नाम लिख दिए, एसए 200, 230, 315, 500, 700, 530। दूसरी कैटेगरी स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ये अप्लाई होते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी हिस्टोरिकल है जैसे ऑडिट में है, बट डिफरेंस क्या है? ऑडिट में एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड होते हैं, रिव्यू में लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म होते हैं। ऑडिट में रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, रिव्यू में लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। रिव्यू इज लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, प्रोवाइड्स एश्योरेंस lower than the assurance provided by the audit. Reason, it involves few procedures as compared to audit. Primarily,
रिव्यू में दो प्रोसीजर्स आते हैं, कौन कौन से? एक इंक्वायरी और दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर। बट ऑडिट में इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रीपरफॉर्मेंस, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। सिंस रिव्यू also provides assurance to the users, it also involves obtaining sufficient appropriate evidences. ध्यान रखिएगा, सफिशिएंसी किसको रिप्रेजेंट करती है? क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ, नंबर ऑफ एविडेंसेस को। एप्रोप्रिएटनेस किसको रिप्रेजेंट करता है? एप्रोप्रिएटनेस रेलिवेंसी को एंड क्वालिटी को। और जब आप स्मॉल शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं SAAE, सोचकर बताओ ये ऑडिट रिव्यू दोनों में यूज हो सकती है ये एब्रीवेशन, या सिर्फ ऑडिट में यूज करनी चाहिए? जी बताइए। ये जो एब्रीवेशन है SAAE, ये ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है या रिव्यू के लिए या दोनों के लिए? सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, एविडेंस और बीच में पड़ा है ए। SAAE, it should be used for only audit. रिव्यू में आएगा SAE, sufficient appropriate evidence. एविडेंस ऑडिट थोड़ी हो रही है, जहां ऑडिट जितने डिटेल्ड प्रोसीजर थोड़ी परफॉर्म हो रहे हैं। रिव्यू को नंबर्स क्या अलॉटेड है? 2000 से 2699। आज तक सिर्फ दो स्टैंडर्ड इशूड है, 2400 जिसका नाम है एंगेजमेंट टू रिव्यू द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड SRE 2410 रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म्ड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपके साथ रेगुलर क्लासेस में डिस्कस किया था। कोई डिफरेंस लर्न करने की, माइंड में रिटेन करने की इंटर लेवल पर रिक्वायरमेंट नहीं है, फाइनल में करेंगे। इंटर में सिर्फ नाम को याद रखना है और कुछ नहीं। बोथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड रिव्यू स्टैंडर्ड्स आर रिलेटेड विद द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब बात करेंगे SAE। SAE ये भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है, लेकिन ये डील करता है उस सब्जेक्ट मैटर को दैट इज अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इट डील्स विद सब्जेक्ट मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Examination is not of historical financial information, or examination may be related with non-financial matters like design and operation of internal control. 3 स्टैंडर्ड्स इस कैटेगरी में इशूड हैं, 3400, 3402 एंड 3420। 3400 एग्जामिनेशन ऑफ PFI, 3402 assurance report on controls at a service organization, 3420 assurance engagements to report on compilation of pro forma financial information included in a prospectus। ये हो गए आपके तीनों एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के स्टैंडर्ड, SA, SRE एंड SAE। SA, SRE, SAE। अब आता है नॉन एश्योरेंस, और नॉन एश्योरेंस में तो एक ही स्टैंडर्ड है सिर्फ, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। एक कैटेगरी है 4000 की सीरीज, दो स्टैंडर्ड हैं 4400 एंड 4410। SRS अप्लाई इन केस ऑफ नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। दो एग्जाम्पल हैं इसके, एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और दूसरा कंपाइलेशन एंगेजमेंट। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की एंगेजमेंट में
ऑडिटर से एक्सपेक्ट किया जाता है टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग items of financial data like account payable, account receivable, purchases from related parties, etc., or performing procedures over balance sheet, or performing the procedure over the complete set of financial statement. लेकिन ये जो प्रोसीजर्स हैं, ये वो प्रोसीजर्स हैं जो ऑडिटर, क्लाइंट और यदि कोई थर्ड पार्टी है जो इस इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहती है, उनके बीच में एग्री हुए थे पहले। ऑडिट में ऐसे प्रोसीजर एग्री नहीं होते। ऑडिटर में प्रोसीजर्स की सिलेक्शन कौन करता है? ऑडिट में ऑडिटर के प्रोसीजर्स की सिलेक्शन कौन करता है? सिर्फ ऑडिटर। बट यहां पर क्योंकि प्रोसीजर्स आर दोज दैट आर बीन एग्रीड बाय द ऑडिटर विद द क्लाइंट विद द थर्ड पार्टी इफ एनी, सो यहां पर हम इसे एक रिलेटेड सर्विसेज की कैटेगरी में ले जाते हैं। मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगा अपना, मुझे जो फैक्ट्स मिलेंगे वो मैं रिपोर्ट करके दे दूंगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट, practitioner is required to assist the management with the preparation and presentation of historical financial information without obtaining any assurance. तो कंपाइलेशन में तो मेरा काम है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, वो मेरा काम है। तो ओपिनियन तो कैसे दे दूंगा जब मैं उसके बनाने के साथ जुड़ा हुआ हूं? एक क्वेश्चन पूछ लूं, यदि मैं ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसकी कंपाइलेशन में मैं एंगेज था, मैं उसका ऑडिट या रिव्यू करता हूं, तो एक थ्रेट आता है मेरे सामने। बता पाएंगे कौन सा थ्रेट है वो? इफ द ऑडिटर इज एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन either as a audit or as a review and auditor was already associated with the entity during the compilation of these financial statement, then there arise a threat, and that is a self कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट या रिव्यू? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। आपने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया और आप ही उसे एग्जामिन कर रहे हैं, दैट इज ए सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इन सच एंगेजमेंट्स, practitioners issue a report stating that it is not an assurance engagement and no opinion is being expressed. दो स्टैंडर्ड हैं जो इस कैटेगरी में इशू है, 4400 जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का है और 4410 जो कंपाइलेशन का है। तो हमारे पास 4 स्टैंडर्ड्स हैं एंगेजमेंट की कैटेगरीज में, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, रिव्यू के स्टैंडर्ड, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज के। इनके ऊपर क्वेश्चंस के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड 4 नंबर के लिए। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ड्यूटीज इन रिलेशन टू engagement and quality control standards. It is the duty of professional accountant to check that standards are followed in the engagements undertaken by them. However, a situation may arise when a specific procedure जो स्टैंडर्ड में प्रिस्क्राइब किया गया है वो एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट में, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में इनइफेक्टिव है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करूं? जो प्रोसीजर स्टैंडर्ड ने बताया उससे मैं एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, दैट सीम्स टू बी इनइफेक्टिव वन। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, स्टैंडर्ड्स कहते हैं अपने जो आपके क्लाइंट की थर्ड पार्टीज हैं, डेटर है, क्रेडिटर है, बैंकर है, उनसे एक्सटर्नल कंफर्मेशंस ले लो बैलेंस कंफर्म करने के लिए। नाउ अब मैं ट्रेड रिसीवेबल डेटर से कंफर्मेशन लेना चाहता हूं, लेकिन
कंपनी जितनी भी सेल करती है वो सब रिलेटेड पार्टीज को करती है, सब रिलेटेड पार्टीज को करती है। रिलेटेड पार्टी से कंफर्मेशन पर मेरा विश्वास नहीं है। मुझे लगता है क्योंकि रिलेटेड पार्टी तो मैनेजमेंट से मिली हुई है, तो रिलेटेड पार्टी तो जैसा मैनेजमेंट बोलेगी वैसी कंफर्मेशन बना करके मुझे दे देंगे। तो मुझे लगता है ये जो प्रोसीजर स्टैंडर्ड में बताया हुआ है एसए 505 में एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, वो इनइफेक्टिव होगा। तो ठीक है, आपको जो सही लगे वो कर लो और उसको डॉक्यूमेंट कर लो कि आप कौन सा प्रोसीजर कर रहे हो और उससे ज्यादा बेटर एविडेंस कैसे मिल पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर द फॉलोइंग: डॉक्यूमेंट हाउ alternate procedures performed to achieve the purpose of required procedure. What are the reasons for the departure, जिसके कारण आप स्टैंडर्ड के बताए हुए प्रोसीजर्स पर ना जाकर दूसरा अल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं। एंड जब आपने डिपार्चर किया, देन ड्रॉ अटेंशन ऑफ द यूजर्स टू सच डिपार्चर that standard on auditing 505 has not been followed. Mere disclosure in a report कि मैंने उसे फॉलो नहीं किया does not absolve a professional accountant from complying with the applicable standard. जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी कंप्लायंस आपकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, सिचुएशन वाइज, सर्कमस्टांस वाइज यदि किसी स्टैंडर्ड का कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं, then draw the attention of the users to such departure. But कि मैं तो ये कह दूं अरे कौन करेगा स्टैंडर्ड्स को फॉलो, एक डिक्लेरेशन दे देता हूं that standards are not being complied with, ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते आप। That does not absolve your liability to comply with these standards. ठीक है, तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 हमने इसे थोरोली रिवाइज कर लिया है। और अब आपका क्या काम है, एक बार अच्छे से चीजों को रिवाइज करें दोबारा सेल्फ स्टडी से। जिन टॉपिक्स को लर्निंग के लिए बोला गया है उनके पॉइंट्स को लर्न करें। एंड क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर 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 करिएगा। क्वेश्चन बैंक में आपके पास सितंबर 24 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हैं। जिनके पास पुराना क्वेश्चन बैंक होगा उनमें एडिशनल पीडीएफ हमने वेबसाइट पर भी, एलएमएस पर भी और सोशल मीडिया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सब जगह उसको अपलोड किया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए उन एडिशनल क्वेश्चंस के लिए। तो एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्लस क्रैकर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं अप टू सितंबर 24 एग्जाम तक के सारा स्टडी मटेरियल कवर है, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर जरूर करिएगा along with these revisions. चैप्टर बहुत आसान है और इस चैप्टर से आप एक 4 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का 7 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4 नंबर का तो एक मिनिमम क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 1 पूरा रिवाइज हो गया है और इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और कल चैप्टर नंबर 11 की रिवीजन करनी है हमें और संडे को आपका चैप्टर 1 एंड 11 का टेस्ट होगा। टेस्ट जरूर देना है, राइट? तो इसके साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर खत्म करते हैं और कल मुलाकात करेंगे। कल का टाइमिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।